Okay, so hi everyone. Now we will see the spherical mirror. Spherical mirror होते क्या हैं और उनकी कुछ बेसिक डेफिनेशन अपने इस वीडियो में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स कैसे देखें अगर अपन, जैसे अपने पास एक फुटबॉल है। फुटबॉल किस तरह की होती है? स्फेयर की, है ना, स्फेरिकल शेप की। तो उस फुटबॉल को मान लो अपने पास एक स्फेरिकल शेप की एक फुटबॉल है, उसका शेप स्फेरिकल होता है, उसका एक सेंटर होता है एंड इट हैज सम रेडियस, है ना। तो इस पार्ट को, इस स्फीयर को अगर अपन यहां से काट दें, वी विल सपोज वी विल कट इट हियर, तो जो पार्ट, ये वाला पार्ट जो निकल के आएगा आपके पास, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, एक बाउल की तरह, है ना, एक बाउल की तरह दिखेगा यहाँ ये दिस। सो व्हेन दिस बाउल शेप इज देयर, उसमें दो सरफेस होंगी, एक बाहर की और एक अंदर की। ओके, वन बाउल विल हैव टू सरफेस, वन विल बी आउटवर्ड्स एंड वन विल बी योर इनवर्ड। ओके, सो इफ द for our convenience we will make it like this only, this part we have cut. Okay, cross section view we will only do. So this is its internal surface, okay, and this is its external surface. This is outward and this is inward. So in that only we have made two kind of mirrors. Okay, okay, this is a part of a sphere. Now if the reflecting surface is inside, suppose if we have this, if the reflecting surface is inside, in this side there is a reflecting surface, means this side will be your polished one, मतलब कि अंदर की तरफ की जो सरफेस थी उसको क्या बना दिया अपन ने, रिफ्लेक्टिंग, कैसे, बाहर की सरफेस को पॉलिश करके। ओके, एंड so this is one kind of, and another we can do in the same, that we can paint inside with some silver coating. So this surface, outer surface will become your reflecting, outer surface will become reflecting. So in this case, when the reflecting surface is inside, so this mirror is called as your concave mirror. Okay, and when the external surface or outward surface is your reflecting, then this is called as your convex mirror. So these two kind of mirror we have, one is concave and other is convex. So when internal, this surface is reflecting, this one surface is reflecting, so that is concave, and if this surface is reflecting, then that will become your convex. Okay, so two kind of surface will be there, and both differently they will have the, what you can say, different name we have given. If the surface is outward reflecting, that will be called as the convex mirror. If the surface is inward reflecting, surface is inside, then that will be called as your concave mirror. Now if it is a part of a sphere, okay, so if it is a part of a sphere, so it will have a radius and it will have a center. Okay, so suppose we are having this part we have, so whatever the radius will be there of the sphere, the same radius will be called as of this. So we will have a certain terminology which we will see now here. तो कुछ certain points हैं जिनको हमको ज़रूरत पड़ती है हमारे दिमाग में रखने के लिए जब हम री ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, किसमें, फॉर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमको समझना है और हमको याद रखना है, तभी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी दोज पर्टिकुलर टर्म्स विच वी विल नीड फर्दर फॉर द स्टडी। सो हियर सपोज if we have a mirror, any mirror you can take, suppose concave or convex. Suppose I have taken a concave mirror.
So in this mirror, this particularly this will have a center point. उस मिरर का एक सेंटर पॉइंट होगा कहाँ पे, करीब यहाँ पे। तो उस मिरर के सेंटर पॉइंट को हम एक नाम देते हैं और उसको बोलते हैं क्या, पोल. That center is called as the pole, the center of the mirror. कैसे निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर से अपन निकाल सकते हैं आसानी से. अब एक और सेंटर होता है, कौन सा सेंटर, उस जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर निकालना है. तो हम किसी भी सरफेस, किसी भी कर्व सरफेस का, जैसे सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं, 2 सेकेंड लो और दोनों सेकेंड को क्या कर दो, बाइसेक्ट कर दो. सो वेयर दे विल इंटरसेक्ट, that point will be called as the center point. Okay, so this, suppose this is the pole, center of the mirror, and this center, okay, it will also have this center. This center is called as the center of curvature. Okay, center of a mirror, center of a sphere of which your mirror is a part. ये सेंटर किसका है, इस स्फीयर का है जिसका तुमने एक पार्ट किसको बना लिया है, कॉन्केव मिरर को बना लिया. ठीक है, the center of the sphere of which the concave mirror is a part of. ओके, ये किसका पार्ट है, ये इस स्फीयर का पार्ट है और उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर इस मिरर का क्या कहलाएगा, तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पोल, दिस इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको क्या बोलेंगे अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर मतलब कितना बेंड है ये. ठीक है, उस कर्वेचर की क्या होगी ये रेडियस. अब देखो रेडियस, कर्वेचर क्या बोल रहे हैं, स्फीयर का नहीं बोल रहे, कर्वेचर की, क्योंकि अगर रेडियस कम होगी तो कर्वेचर कैसा होते जाएगा तुम्हारा, और भी ज्यादा बेंड होते जाएगा. क्योंकि जितनी छोटी रेडियस करोगे उतना ज्यादा बेंड रहेगा और जितना बड़ी रेडियस करते जाओगे, इसमें और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि इसकी रेडियस कम होगी और इस पर्टिकुलर केस की रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी. तो इसका कर्वेचर कम हो गया, इसका कर्वेचर क्या हो गया है, ज्यादा. इसमें कर्वेचर क्या है, कम. और कर्वेचर को और कम कर दो ऐसा, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी. सो हाउ मच इट इज बेंट, दैट इज कॉल्ड एज द कर्वेचर, है ना. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे. जैसे जैसे रेडियस बड़ी होती जाएगी कर्वेचर वैसा वैसा क्या होता जाएगा तुम्हारा, छोटा होता जाएगा. ठीक है, और उतना उसका बेंडिंग इफेक्ट कम हो जाएगा. और जैसे जैसे रेडियस को छोटा करोगे कर्वेचर बढ़ जाएगा, उतनी ज्यादा वो क्या हो जाएगा, बेंड होने लग जाएगा. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज द दिस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू पोल इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको बोलते हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ हियर sphere, when we draw perpendicular on the surface of sphere, mostly it goes, suppose if we are having a circle or a sphere, अगर इसकी सरफेस पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कहीं से भी, तो वो हमेशा कहाँ से पास होती है, तुम्हारे सेंटर से, है ना, ध्यान में रखना. तो कोई भी मिरर में जब इस स्फेरिकल मिरर में जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो अपन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन जो सेंटर से पास हो रही है उस पॉइंट के लिए. ठीक है, तो कोई भी पॉइंट को अगर तुम सेंटर से ज्वाइन कर दोगे बाय स्ट्रेट लाइन, सो ऑन दैट सरफेस दैट लाइन विल बिकम परपेंडिकुलर. बड़े डायग्राम में समझें, जैसे इस पॉइंट पे मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन करूँगा, तो ये लाइन इस पे क्या हो जाएगी तुम्हारी, परपेंडिकुलर. ऑलवेज whenever you have to draw a perpendicular on a spherical surface, you draw
a line which is passing from the center. So that line will become perpendicular on the surface at any point. Keep that thing in mind. So whenever we have to draw a normal on the spherical surface, we draw a line which is passing through the center of that spherical surface. ओके उस स्फीयर के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसको बोलेंगे अपन, वो लाइन हो जाएगी तुम्हारी नॉर्मल सरफेस। अब वैसे ही यहाँ पे अपन जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये रेडियस है जो सेंटर से होती हुई जा रही है, मतलब कि ये किस पे परपेंडिकुलर हो गई तुम्हारी पोल पे। इसी लाइन को दोनों तरफ अपन बढ़ा देते हैं इनफाइनाइट, इस लाइन को बढ़ा देते हैं। तो ये जो लाइन कहला जाती है तुम्हारी, क्या कहला जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें और भी एक्सिस बन सकती हैं। और भी एक्सिस कैसे बन सकती हैं, सेंटर से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो एक और एक्सिस बन जाएगी, सेंटर से लेके इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दो तो दूसरी एक्सिस बन जाएगी, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो तीसरी, बहुत सारी एक्सिस बन जाएगी। लेकिन एक ही प्रिंसिपल एक्सिस होगी। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, वो लाइन जो सेंटर और पोल को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है। ठीक, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, डेफिनेशन अगर लिखना है तो अ लाइन which is passing through pole and center of curvature, that is called as the principal axis। और फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी। प्रिंसिपल एक्सिस केवल कौन सी होगी, एक लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, उसको बोलेंगे अपन प्रिंसिपल एक्सिस। सारी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या क्या देख लिया है, अभी अपन ने देख लिया पोल। पोल क्या होता है, मिरर का सेंटर पॉइंट। ओके, द सेंटर ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड एज द पोल। देन यू हैव the center of curvature. What is center of curvature, the radius center of a sphere of which this mirror is a part of, that is called center of curvature। definition लिखना है तो center of curvature लिख लो, that center of sphere of which the mirror is part, है ना। या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर की तो रेडियस ऑफ दिस रेडियस इज आल्सो दिस रेडियस, इसको भी अपन r से डिनोट करते हैं, है ना। सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज द रेडियस। और इन दिस लैंग्वेज आल्सो यू कैन से द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज पार्ट ऑफ, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ व्हिच द मिरर इज part of, that is also called as the radius of curvature। okay, so pole, center of curvature, radius of curvature, and fourth we have seen this principal axis, a line which is passing from the center and pole, that is called as the principal axis। okay, so four things we have seen till now, one is pole, second is center of curvature, third is radius of curvature, and fourth is your principal axis। one more thing is left, and which is that thing, and actually there is one thing that we have, this is your concave mirror and we will have a convex mirror also, both the mirror we will have। तो क्या होता है कि जैसे ये सारी चीज़ें अगर तुमको समझ में आ गई हो, तो अब एक मिरर अपने पास ये है जिसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और एक और मिरर हो सकता है, कैन हैव अनदर मिरर दैट इज योर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इन दिस कॉन्वेक्स मिरर दिस इज पोल, हियर विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो दिस बोथ द मिरर वी हैव। अगर दोनों मिरर में अपन एक स्पेशल पैटर्न की लाइट डालते हैं तो अपने को एक स्पेशल पैटर्न का रिफ्लेक्शन मिलता है। ठीक है, कैसा, अगर वो स्पेशल पैटर्न कैसा कि जब लाइट आ रही है इसमें और जो
लाइट आ रही है, वो जो लाइट रे है वो कैसी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सपोज दिस इज इट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दीज आर द इंसिडेंट लाइट रेज, जो कैसी आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट हैपेंस हियर, all these light rays pass through a single point. All these light rays after reflection. तो सारी लाइन जो है एक ही पॉइंट पे क्या हो रही है, फोकस हो रही है, कन्वर्ज हो रही है. सो दिस मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर. This mirror is also called as the converging mirror, and where all the light has been focused, that is called as the focus point. इस point को अपन बोलते हैं focus point. This point, this F is called as the focus point. और ये जो distance है between pole and focus, between pole and focus, the distance between pole and focus, that is called as the focal length. That is called as the focal length, है ना. इसमें भी अगर अपन सेम पैटर्न की लाइट डालें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो वी विल सी हियर अनदर काइंड, क्योंकि इसमें लाइट उस तरफ तो जा नहीं सकती, तो रिफ्लेक्शन होके लाइट जो है कुछ इस तरह की दिखती है अपने, इस तरह से. अब क्या हो रही लाइट, इसमें गई थी पैरेलल, क्या हो गई, कन्वर्ज. इसमें जो लाइट रे आई हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई हैं, डायवर्ज. ये इधर जा रही है, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रही है. सो ऑल दिस हैज बीन डायवर्ज. सो दिस कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज द, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग मिरर. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग मिरर. And if you will see, so it will appear like all these lines are coming from a single point, and this point is called as the focus point of convex mirror. Okay, focus point of a convex mirror. ठीक है. और दो चीजें गौर करने की, इसमें भी ये जो डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच की रहेगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ. फोकस, this will be called as the focal length. This is your radius of curvature, this distance. Okay, this distance will be between center and pole will be called as the radius of curvature. एक चीज और गौर करने की इसमें कि कॉन्वेक्टिव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस वो मिरर के सामने होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस दोनों मिरर के पीछे होते हैं. ठीक है. तो इसके कारण इनको वर्चुअल बोलते हैं, और इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं. रियल और वर्चुअल क्यों, अगर आपने पुरानी वीडियो देखो, जब लाइट रियल में इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रियल. when they are not intersecting but appears to be intersecting, then they are called as the virtual. तो ये फोकस वर्चुअल क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई है, यहाँ तक नहीं जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक जा रही हैं, तो ये वर्चुअल इंटरसेक्शन. This is virtual intersection. They are not actually intersecting here, but they appears to be intersecting. That's why this point is not a real point or real focus. That is called as your virtual focus. And your concave mirror, here they are really intersecting. So the focus of concave mirror is real focus, and the focus of convex mirror is virtual focus. So you can write here concave mirror has real focus, while convex mirror has virtual focus. क्योंकि लाइट रेस, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस तो यहीं से वापस चली गई ना, अंदर तक तो गई नहीं, तो ये क्या है, इनका virtual intersection. It appears they are all coming from here, but they are not coming from here. They has been reflected from here only. So that's why this is your virtual. While if you see here, so here you will see it is real intersection. That's why this particular case
This is real focus and this is your virtual focus. Thank you.